Students, today we'll discuss the next lecture of surface chemistry, that is lecture number 10, and in this lecture we will study about coagulation, its meaning, mechanism, various methods of coagulation, and finally the applications of coagulation. So I'll start with the meaning of coagulation. Just see, coagulation is the process of converting colloidal solutions into the precipitates. Clear to all of you? You have to convert the colloidal solution into the precipitate. Listen student, this is just reverse of peptization. Remember we have done the peptization जब हमने method of preparation किए थे, then we have done the, here we have done that is peptization. Peptization is the conversion of precipitates into the colloidal solutions. So these two processes, these are just reverse of each other. If you will convert colloidal solution into the precipitate, it is said to be the coagulation. If you will convert precipitate into the colloidal solution, that is said to be the peptidation. And one important thing, in both the cases we will use electrolytes. हम electrolyte का use करते हैं. So the proper definition of coagulation is the conversion of colloidal solution into the precipitate in the presence of electrolyte. Now students, some other names of coagulation. Since in this process precipitates are formed, so this coagulation is also said to be precipitation. And one more name is there, flocculation. So these two are some, you can say, additional name of the process coagulation. Now I'll start with the mechanism of coagulation. To understand the mechanism, just see out. Suppose these are colloidal particles, and all of you know that colloidal particles are charged, either they are positive or negative. So I'll assume that these are negatively charged colloidal particles. Negatively charged colloidal particles in a container. Now I have added an electrolyte, that you can say NaCl we can take. Now since these electrolytes, they will contain positive and negative ions, out of Na positive and Cl negative ions, this Na positive ions, it attaches to the negative ion, and what it forms, just see out. This is the negative ion, Na positive ion इससे अटैच होगा इस तरह से, negative Na positive ion, negative Na positive ion. So अब ये जो complete identity है, this complete identity is now neutral. ये complete identity आपकी neutral है. पहले क्या था, these colloidal particles, these are charged particles, but when the ions from the electrolyte, they get attached to these, then this will become the neutral. And after gaining the neutrality, what happens? These particles, they will settle down at the bottom. Settle down at bottom, and I will get this type of picture. These are the particles which settle down at the bottom, and these particles are now said to be the precipitates. So this is the three-step process, namely हमने इसको study किया with the help of the diagram. Now अब इसका लिखते हैं. What will I write in the mechanism? What will you write? Simply you have to write the ions from electrolyte attracted towards colloidal particle, make them neutral, and they settle down at the bottom. So this is the mechanism of, you can say, coagulation. Clear to all of you? Now we have to study the next topic, that is various methods of coagulation. Just see out. The next one is various
various methods of coagulation. Now student, these are divided into two parts. First we have to coagulate the lyophobic colloidal solutions, and then lyophilic colloidal solutions. So there are two type of method. First type of method we have to coagulate lyophobic, and the second we have to coagulate the lyophilic. So first I will start with the methods for coagulation of lyophobic colloidal solutions. लायोफोबिक के बारे में हम स्टडी करते हैं. वी ऑल नो बेटा दैट लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस, दीज आर लेस स्टेबल ड्यू टू विच दे आर इजीली कोएगुलेटेड. ये चीज़ हमको पता है, तो पहले मैंने इसी को डिस्कस किया. वी डोंट फेस सो मच ऑफ द डिफिकल्टी जब हम इनको कोएगुलेट करेंगे. द रीजन बीइंग दीज आर लेस स्टेबल, दे आर इजीली कोएगुलेटेड. सो बेसिकली वी आर यूजिंग द फोर मेथड्स. The first method that we will use is mutual coagulation. In mutual coagulation, beta, what will be done? We simply take a positively charged colloidal particle. It is mixed with a negatively charged colloidal particle. Just understand, this is a positively charged colloidal particle. It is mixed with negatively charged colloidal particle. What happens? ये जो पॉजिटिव चार्ज का कोलाइडल पार्टिकल है, इट न्यूट्रलाइज द नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, वेयर एज द नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल इट न्यूट्रलाइज द पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल. मीन्स बोथ कोलाइडल पार्टिकल न्यूट्रलाइज ईच अदर, and you can say both coagulate each other. So in the mutual coagulation, simply what we will to write, simply mix two oppositely charged colloidal solutions which mutually coagulate each other. दोनों को कोएगुलेट करेंगे. को बेटा एक चीज आपको ध्यान रखना है, इन द कोएगुलेशन आपको सिर्फ ना चार्जेस को फिनिश करना है. अगर पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया गया या नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो दैट इज कोएगुलेशन है वो हो चुका है. तो जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे दे म्यूचुअली क्या करेंगे, एक दूसरे के चार्जेस को फिनिश करेंगे एंड दे म्यूचुअली कोएगुलेट ईच अदर. नाउ एज फार एज एग्जांपल इज कंसर्न्ड, इन माई लास्ट लेक्चर आपको मैंने बताया था कि किस टाइप के पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है. सो आइदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. तो सपोज हम लेके चलें, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड. जस्ट सी आउट, FeOH thrice. Ferric hydroxide sole is mixed with arsenic sulfide sole. What happens now? अब देखिए जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है, दिस इज बेसिकली अ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल, clear to all of you, whereas arsenic sulfide is a negatively charged colloidal solution or soul, whatever you want to say. तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड आर्सेनिक सल्फाइड को न्यूट्रलाइज करेगा, whereas arsenic sulfide फेरिक हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करेगा, रिजल्टिंग इन द coagulation, and this is said to be the that is mutual coagulation. तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको करना है. नाउ आई डिस्कस वन क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है. आई विल राइट द क्वेश्चन हियर. जस्ट सी आउट क्वेश्चन, what happens when ferric hydroxide is mixed with arsenic sulfide? So your answer is now, say students, आपको अच्छी तरह पता है फेरिक हाइड्रोक्साइड और आर्सेनिक सल्फाइड, दीज आर द टू कोलाइडल सॉल्यूशंस. एंड जहां तक चार्ज की बात है, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज सिंपली अ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, वेयर आर्सेनिक सल्फाइड इज नेगेटिवली चार्ज. सो जब हम दो पॉजिटिव वी विल मिक्स टू अपोजिटली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, देन व्हाट हैपेंस, म्यूचुअल कोएगुलेशन.
बट एक चीज ध्यान रखना है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि फेरिक हाइड्रोक्साइड पे क्या चार्ज है, आर्सेनिक सल्फाइड पे क्या चार्ज है. फॉर इट आई विल गिव यू अ सजेशन दैट लर्न द टेबल ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स. ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जब हमने चार्ज को डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने ड्रॉ भी की थी और आपको बताया भी था, क्योंकि इस आर्टिकल के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके कोलाइडल पार्टिकल पे कौन सा पर्टिकुलर चार्ज है. सो दिस वी हैव डन द फर्स्ट मेथड ऑफ दैट इज कोएगुलेशन ऑफ लाइफिलिक कोलाइडल सोर्स. नाउ द सेकंड मेथड इज यू कैन से electrophoresis. I'll just remove this part. Second method is electrophoresis. Listen students, all of you have done the electrophoresis. Electrophoresis क्या होता है? Just see out. This is a tube, U-shaped tube, electrophoresis tube. This is positive electrode, this is negative electrode. Now what happens if I place colloidal particle here? Suppose मैंने एक negative charge का colloidal particle यहाँ पे रखा है. This is you can say negatively चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल यहाँ पे रखा है मैंने. नाउ अब ये नेगेटिव चार्ज का कोलाइडल पार्टिकल है, इट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. क्लियर? ये यहाँ पर जाएगा, अट्रैक्ट होगा. एंड व्हेन दिस पार्टिकल टचेस द इलेक्ट्रोड, जब ये नेगेटिव इसको टच करेगा, देन दिस पार्टिकल कोएगुलेट्स. ये क्या हो जाएगा? कोएगुलेट हो जाएगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस को कंटिन्यू रखोगे तो जो आपका कोलाइडल सोल का पार्टिकल है, आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने इलेक्ट्रोड पे जाएगा. एंड एज सून एज इट टचेस द इलेक्ट्रोड, वो वहीं पर क्या हो जाएगा? उसका चार्ज फिनिश हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा. और न्यूट्रल होने का मतलब वो क्या हो गया? कोएगुलेट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो व्हाट वी हैव टू राइट, इफ इलेक्ट्रोफोरेसिस is done continuously, then colloidal particle touches the oppositely charged electrode and gets coagulated. So this is the second method by which we can coagulate the colloidal particles. Now we'll discuss the third method, that is persistent dialysis. Third method is persistent dialysis. बेटा यहाँ पे मैं डायलिसिस को डिटेल में नहीं कर रहा, जस्ट वी हैव टू सी कि डायलिसिस हमारे लिए क्या बेनिफिशियल. सो टू अंडरस्टैंड, जस्ट सी आउट. सपोज दिस इज अ कंटेनर and in this container colloidal particles are present. Clear to all of you? When we do the dialysis, जब हमने डायलिसिस किया तो डायलिसिस में क्या होता है? जो आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. देन ड्यूरिंग डायलिसिस व्हाट हैपन्स? चार्ज्ड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड. ये जो आपके कोलाइडल पार्टिकल है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल भी होंगे. तो ड्यूरिंग डायलिसिस क्या होगा? कोलाइडल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, बट ड्यूरिंग डायलिसिस व्हाट हैपन्स? जो चार्ज पार्टिकल है वो रिमूव हो गए. सो जो बचा लेफ्ट, व्हाट इज लेफ्ट? न्यूट्रल पार्टिकल्स आर लेफ्ट. सिर्फ कैसे पार्टिकल बचे? आपके न्यूट्रल पार्टिकल्स. एंड दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स दे गेट्स कोएगुलेटेड इजीली. सो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है. ड्यूरिंग डायलिसिस आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको ड्यूरिंग द कोएगुलेशन क्या करना होता है? चार्ज को खत्म करना होता है. तो यहाँ पे क्या करना है आपको? चार्ज फिनिश करने का मेथड क्या है? आप अपने चार्ज पार्टिकल को ही निकाल दीजिए. और निकालने के लिए हमने प्रोसेस क्या यूज किया? डायलिसिस. तो चार्ज पार्टिकल दे गेट रिमूव्ड. सो बचा हुआ सॉल्यूशन, उसमें सिर्फ क्या बचेंगे? न्यूट्रल पार्टिकल्स. और न्यूट्रल पार्टिकल मीन्स इट गेट्स कोएगुलेटेड. सो व्हाट विल आई राइट? इन पर्सिस्टेंट डायलिसिस द चार्ज्ड particles are removed and remaining neutral solution gets coagulated. So ये clear हुआ आपको अच्छी तरह से persistent dialysis. Now we'll study the last method, that is heating or cooling. Fourth method.
heating or cooling. Sometime beta, if I'll increase the temperature or I'll decrease the temperature, in these two conditions the colloidal solutions also gets coagulated. I'll give you the example. In case of butter, all of you know about the butter. If the temperature increases, and in case of milk, if the temperature decreases, in both the condition they gets coagulated. So in sometimes we have discussed that increase or decrease of temperature से भी क्या हो सकता है, coagulation हो सकता है. Just learn the example. Butter increase in temperature, milk decrease in temperature. So this all beta we have done the method of coagulation of lyophilic colloidal solutions. Now we'll study the second, that is method of coagulation of lyophilic colloidal solutions. Second method of coagulation of lyophilic colloidal solutions. But all of you know that these lyophilic colloidal solutions, these are more stable. Due to more stability, they are not easily coagulated. Stability बहुत ज़्यादा तो हम इनको इतना easily coagulate नहीं कर सकते. But we have to coagulate. So what will we do? हमें इसकी stability को क्या करना पड़ेगा? We have to reduce the stability. Clear to all of you? And if the stability is reduced, then it gets coagulated easily. So एक बड़ा important point है, normally question भी आता है कि how will you coagulate the lyophilic colloidal solutions? So here you have to write that in case of lyophilic colloidal solutions हमें क्या करना है, सिर्फ उसकी stability को कम करना है. If the stability decreases तो automatically वो क्या हो जाएगा, coagulate हो जाएगा. But how to reduce the stability? हम stability को reduce कैसे करें? इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा that the stability is basically due to the two things. Number one, due to the presence of charges, and due to the particles are highly hydrated. जो लाइफिलिक में है हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा और चार्जेस भी हैं, तो इस वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. सो स्टेबिलिटी रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस द स्टेबिलिटी हमें क्या करना होगा? नंबर वन, वी हैव टू रिड्यूस द चार्जेस, एंड नंबर टू, we have to decrease the hydration. We have to do the two things. हमें चार्जेस को डिक्रीज करना होगा और हाइड्रेशन को भी डिक्रीज करना होगा, so that we can coagulate them. So ये तो थ्योरेटिकल मैंने आपको बताया कि नॉर्मली अगर आपको पता करना हो कि कैसे करना है, तो सिंपली हैव टू राइट these two things we have to do. Now how can we achieve these two things? हम इन चीज़ों को अचीव कैसे करेंगे? ऑन दैट बेसिस हमारे दो मेथड्स हैं फॉर द कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशंस. द फर्स्ट वन इज The first method is by the addition of electrolyte. Just see out the first method. These are your colloidal particles, negatively charged. I'll write Cp. You have added electrolyte just like NaCl आपने ऐड किया, तो ये Na पॉजिटिव आयन इसकी इट विल अटैच टू द नेगेटिव पार्टिकल्स. यहाँ पर आएगा, ये इस तरह से अटैच हो गए बेटा नेगेटिव के साथ, और ये पूरी की पूरी जो आइडेंटिटी है, दिस कंप्लीट आइडेंटिटी इज नाउ न्यूट्रल, एंड दीज पार्टिकल्स दे विल सेटल डाउन एज precipitate. So understand the procedure. So what you have to write during this, just simply write the electrolyte convert the charged colloidal particles into the neutral particles, and they get coagulated. So this we have done the first method, understand to all of you. Now we will study the second method, that is by the addition of dehydrating solvent. Beta, dehydrating solvent
It is a solvent which reduces or decreases the amount of water. अगर आपको वाटर को रिड्यूस करना है तो आप किस तरह के सॉल्वेंट को यूज कर सकते हो? डिहाइड्रेटिंग सॉल्वेंट को. सो व्हाट हैपेंस, जस्ट सी आउट. सपोज दिस इज योर कोलाइडल पार्टिकल, बेसिकली लायोफिलिक, और इसके साथ ये आपका वाटर है. क्लियर हो गया अच्छी तरह से. और ये कंप्लीटली क्या बन गया आपका? दिस इज योर डिस्पर्स्ड फेस. नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू ऐड इथेनॉल, C2H5OH. हमने इथेनॉल को ऐड करना है. सो इथेनॉल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिहाइड्रेटिंग सॉल्वेंट्स. सो जब आप इथेनॉल आप इसमें ऐड करोगे, देन व्हाट हैपन्स? इथेनॉल इस वाटर को रिमूव कर देगा, ये वाटर बाहर आ जाएगा. क्लियर? देन इफ वाटर इज रिमूव्ड, ये वाटर बाहर आ गया, देन व्हाट हैपन्स? दिस कोलाइडल पार्टिकल नाउ बिकम्स लेस स्टेबल एंड कैन बी कोएगुलेटेड. सो एक बार फिर से बता रहा हूं, जस्ट थोड़ा टिपिकल है बट अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है. ये कोलाइडल पार्टिकल लायोफिलिक किस वजह से स्टेबल था? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर. हमने ऐड किया सॉल्वेंट इथाइल अल्कोहल, ये इस वाटर को रिमूव करेगा, ड्यू टू विच ये जो कोलाइडल पार्टिकल है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी. इट बिकम्स लेस स्टेबल एंड कैन बी कोएगुलेटेड. सो व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस प्रोसेस, जस्ट सी आउट. द डिहाइड्रेटिंग सॉल्वेंट removes water, due to which colloidal particle gets dehydrated and less stable. So student, this all we have done the various method of you can say that is a coagulation of colloidal solution. Now we'll shift to the last part of our lecture, that is applications of coagulation. The last part, applications of colloidal solutions. Applications of, you can say, sorry, coagulation of colloidal solutions. Coagulation of colloidal solutions. चलिए बेटा, now see now. So the first application is artificial rain. आप सबने सुना होगा आर्टिफिशियल रेन के बारे में. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है? सपोज दिस इज अ क्लाउड. थिंक केयरफुली. दिस क्लाउड कंटेन चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स. ये पर्टिकुलरली एक आपका क्लाउड है. ठीक है. अब चार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स एंड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स, दीज आर कोलाइडल इन नेचर. सो व्हाट वी हैव टू डू? जस्ट स्प्रे इलेक्ट्रोलाइट्स. अगर इनके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट का स्प्रे किया जाए, जस्ट लाइक NaCl और एनी अदर इलेक्ट्रोलाइट, देन व्हाट हैपन्स? अब मान के चलते हैं कि ये जो आपके पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिव चार्ज के हैं. सो यहां से कौन सा आयन अटैच होगा बेटा? Na पॉजिटिव आयन विल अटैच, जस्ट लाइक दैट. और ये सारे पार्टिकल्स दे नाउ बिकम न्यूट्रल एंड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स becomes coagulated and comes in the form of रेन. तो बिल्कुल सिंपल, आपको बड़े ध्यान से करना है. जो आपका वाटर पार्टिकल्स हैं किसके अंदर? क्लाउड के अंदर. दे आर चार्ज पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं. इलेक्ट्रोलाइट का स्प्रे करोगे, वो इनके चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रल में कन्वर्ट करेगा एंड योर वाटर मॉलिक्यूल दे विल कम डाउनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेन. सो व्हाट वी विल राइट हियर? रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बड़े ध्यान से समझना है आपको. व्हाट यू हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रोलाइट्स sprayed on clouds coagulates
the water droplets, or you can say water molecules in the cloud, which comes downward in the form of rain. So student, this we have discussed the first you can say application of coagulation. Now the second application is cloud burst. Second one is cloud burst. क्लाउड बर्स्ट नॉर्मली इसमें आपने सुना होगा इन द हिली एरियाज की बादल फट जाते हैं, बादल का फटना नॉर्मली हम इसको हिंदी में बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। इसमें होता क्या है, सपोज दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस इज वन क्लाउड contain negatively charged colloidal particles. This is second cloud, this contain positively charged colloidal particle, and when these clouds they will mix with each other, then they coagulate each other. क्या करेंगे बेटा, ये एक दूसरे को coagulate करेंगे, during which what happens, the water molecules present in them converts into precipitate and comes down on earth. So बिल्कुल अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से। क्लाउड 1 में नेगेटिव चार्ज के कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, क्लाउड 2 में पॉजिटिव चार्ज के कोलाइडल पार्टिकल हैं। जब ये एक दूसरे में मिक्स होंगे, दे व्हाट डू, दे कोएगुलेट ईच अदर, दैट इज दे म्यूचुअली कोएगुलेट करेंगे और पूरा क्लाउड मिक्स होगा और जितने वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दे विल कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। दिस इज सेड टू बी द बर्स्टिंग ऑफ क्लाउड, क्योंकि ये कोएगुलेशन बहुत फास्टर रेट पे होगा, तो जो वाटर नीचे आएगा इट कम्स इन द फास्टर रेट, दैट इज सेड टू बी द क्लाउड बर्स्टिंग। सो इसका रीजन क्या, व्हाट इज द क्लाउड बर्स्टिंग, द अपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड्स म्यूचुअली coagulate each other. This is the second application. Now I'll shift to the third application. Third application is delta formation. What is delta formation? Just see out first. Beta, this is the sea bed. Just understand now. This is sea bed. ये पूरा आप मान के चलिए sea है. The river is coming from this side. This is the river. जैसे रिवर वाटर सी वाटर में मिक्स होगा, दिस इज यू कैन से सी वाटर। और थोड़ा डायग्रामेटिकली भी चलो इसको ठीक कर लेते हैं, विल मेक कि थोड़ा रिवर के जैसा लुक लाइक हो, रिवर वाटर। जब रिवर वाटर सी वाटर में मिक्स होगा, व्हाट हैपन्स व्हेन रिवर वाटर मिक्सेस इन सी वाटर, तो क्या होगा, यहां पे लोअर साइड में प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे इस तरह से। दीज आर द प्रेसिपिटेट्स। द प्रेसिपिटेट स्टार्ट फॉर्मिंग एट द सी बेड, इकट्ठे होंगे, ऐसे करते करते ये सी बेड इंक्रीज करेगा, दिस सी बेड स्टार्ट इंक्रीजेस। नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन द सी बेड व्हाट हैपन्स, ये जो रिवर यहां से आया था अब इसको अपना रास्ता यहां से चेंज करना पड़ेगा दिस वे। पहले तो ये डायरेक्टली इसके अंदर जा रहा था, बट धीरे धीरे सी बेड इंक्रीज करेगा तो आइदर ये यहां से रास्ता बनाएगा और ये यहां से रास्ता बनाएगा। दिस इज सेड टू बी द डेल्टा। सो डेल्टा में होता क्या है, व्हेन रिवर वाटर इज मिक्स इन सी वाटर द सी बेड इंक्रीजेस, और यू कैन से सी बेड हाइट इंक्रीजेस। सी बेड की हाइट इंक्रीज होगी एंड द वाटर फॉर्म्स अ न्यू पाथ, वाटर एक नया रास्ता बनाएगा। दिस इज सेड टू बी द डेल्टा। ये तो बेटा ज्योग्राफिकल डेफिनेशन हुई डेल्टा फॉर्मेशन की। नाउ विल सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दिस अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, और यू कैन से कोएगुलेशन। सो जस्ट सी आउट, river water contains clay particles. These are colloidal particles. When this river water it mixes with sea water, this I will write sea water. Now sea water contain beta sea water it contain
इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से क्या होगा, ये जो आपके कोलाइडल पार्टिकल हैं, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल से कंबाइन करें, इलेक्ट्रोलाइट के आयन से कंबाइन करेंगे, व्हाट हैपेंस, दीज कोलाइडल पार्टिकल दे विल कंबाइन विद द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देन व्हाट हैपेंस, दीज क्ले पार्टिकल्स, इनको मैं ऐसे शो करूंगा, देखिए ये क्ले पार्टिकल मैंने ऐसे शो किया, ठीक है ना। ये क्ले पार्टिकल किसी चार्ज आयन से कंबाइन करेगा, इस तरह से ये क्ले पार्टिकल आ गया बेटा, और ये अपोजिट चार्ज का आयन आ गया, दिस वन। एक और एग्जांपल, क्ले पार्टिकल, दिस इज अपोजिटली चार्ज। नाउ व्हाट हैपेंस, these clay particles they get coagulated and these particles they will settle down at the bottom। ये इस तरह से सेटल डाउन करेंगे। मैं दो ही पार्टिकल शो कर रहा हूं ताकि प्रोसेस आपको क्लियर हो। सेटल डाउन होने की वजह से क्या होगा, नीचे सी बेड पे हाइट इंक्रीज शुरू हो जाएगी, जिस तरह से सी बेड पे इंक्रीज हुए, द हाइट ऑफ सी बेड राइजेस, ड्यू टू विच द रिवर का जो रास्ता है वो चेंज होगा। सो हमें इसमें डिटेल में नहीं जाना कि व्हाट इज डेल्टा, हमें यहाँ पे अपना रीजन देखना है। सो डेल्टा फॉर्मेशन में क्या होता है, जस्ट व्हाट वी हैव टू राइट, द कोलाइडल पार्टिकल्स इन रिवर वाटर गेट्स coagulated by the ions in sea water and gets precipitated at the bottom, due to which what happens, the height of seabed increases, that you have to write simply. So main तो coagulation हुआ है, that you have to remember. Now this is the third application of coagulation. Now we'll shift to the fourth application. Fourth application is Cottrell precipitator, COTTRELL, Cottrell precipitator. Now what is this? A simple Cottrell precipitator क्या करता है, what it does, just understand. Suppose बेटा this is a smoke. This smoke contain two type of particles, gases plus dust particles. These dust particle, these are colloidal in nature and these are charged. ये चीज थोड़ा क्लियर हुआ। स्मोक में क्या होता है, स्मोक कंटेन gases plus dust particle which are colloidal and charged. If this smoke is allowed to enter in Cottrell precipitator, so Cottrell precipitator क्या करेगा बेटा, ये it coagulates dust particle को coagulate करेगा and they settle down in Cottrell precipitator। उसी में नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो आपका स्मोक है इट गेट कन्वर्टेड इनटू द गैसेस। नाउ दीज गैसेस दीज आर फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल, दीज गैसेस आर फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, अंडरस्टैंड। नाउ जस्ट सी व्हाट इज अ डायग्राम। ये तो समझ में आ गया आपको व्हाट Cottrell precipitator does। The Cottrell precipitator coagulate the dust particle and they settle down in the Cottrell precipitator, during which the smoke is converted into gases and these gases these are free from the dust or you can say dirt particle, जो भी आप लिखना चाहो, it's your wish. Now the diagram of Cottrell precipitator, just see out. The diagram is very simple. These are the charged plates. Okay, now from here smoke is allowed to enter. Now इस स्मोक में से बेटा जो आपके डर्ट के पार्टिकल है, यहाँ डस्ट पार्टिकल है, दी डस्ट पार्टिकल बीइंग कोलाइडल इन नेचर, ये अपनी अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, क्लियर।
these dust particle they will move to the electrode, this part and this part. वहाँ पर ये क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, and they get precipitated and settle at bottom. इस तरह से ये बॉटम पे आपके सेटल हो जाएंगे, दिस लाइक दैट. सो जो डस्ट पार्टिकल है वो कोएगुलेट हुआ और कहाँ पे सेटल डाउन हो गया, नीचे. और यहाँ से फिर क्या निकलेंगे आपकी, दीज आर ओनली द गैसेस फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स. सो ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से स्मोक एंटर करेगा, डर्ट पार्टिकल यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे और यहाँ से जो आपकी गैसेज है विच आर नॉट फ्री फ्रॉम द डर्ट पार्टिकल्स वो लीव करेंगे. दिस इज नॉर्मली फिटेड इन द इंडस्ट्रीज सो दैट वहाँ पे जो आपका स्मोक है उसको प्योर गैसेज में कन्वर्ट किया जा सके. सो दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन दैट वी हैव डन. नाउ फिफ्थ इज सीवेज डिस्पोजल. सीवेज डिस्पोजल. बेटा सीवेज वाटर नॉर्मली कंटेन्स वाटर प्लस जो सीवेज होता है, जो पर्टिकुलरली हम कहते हैं सीवेज, दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स, जिसको पर्टिकुलरली क्या नाम दिया हमने, सीवेज. सो व्हाट हैपन्स बेटा, दिस इज योर वाटर. अब आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है. यहाँ पर लगा दिया हमने पॉजिटिव फील्ड और यहाँ पर हमने लगा दिया नेगेटिव फील्ड, ये. एंड दिस इज कंप्लीट कंटेनर. सो व्हाट हैपन्स, ये जो आपका चार्ज पार्टिकल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ध्यान से देखिए, डायग्रामेटिक इन रिप्रेजेंटेशन है ये, इंडस्ट्रियल तो हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे. तो जो पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है वो जाएगा टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, टकराएगा, सेटल डाउन एट द बॉटम. सेम हेयर, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, स्ट्राइक करेगा, सेटल डाउन एट द बॉटम. सो धीरे धीरे जितने भी आपके चार्ज पार्टिकल हैं दे गेट सेटल डाउन एट द बॉटम, और यू कैन से दे गेट कोएगुलेटेड. दीज चार्ज पार्टिकल दे गेट कोएगुलेटेड. तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली व्हाट इज लेफ्ट, प्योर वाटर इज लेफ्ट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो व्हाट यू हैव टू राइट इन सीवेज डिस्पोजल, व्हेन electric field is applied, the charged particles in sewage water gets coagulated and settle down at the bottom, leaving behind pure water. So this you understand, sewage disposal. Now the application number 6. The sixth application is purification of river water, household water, or you can say industrial water. So बेटा इसके लिए what will contain, we normally add alum. हम नॉर्मली क्या करते हैं बेटा, इसमें एलम ऐड करते हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और एलम कंटेन्स Al3 पॉजिटिव आयन. अब यहां से समझिए क्या होता है. सपोज दिस इज योर वाटर, ओके. दिस वाटर कंटेन्स सम नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स. दीज आर द कोलाइडल पार्टिकल्स इन वाटर. कौन से, नेगेटिवली चार्ज. सो बेटा जब आप एलम ऐड करोगे तो आपने क्या ऐड किया, Al3 पॉजिटिव आयन. दीज Al3 पॉजिटिव आयन इनके साथ अटैच होंगे जस्ट लाइक Al+3, बिकॉज अपोजिटली चार्ज आयन्स अट्रैक्ट ईच अदर. अब ये जो आपके चार्ज पार्टिकल है, व्हाट हैपेंस, दीज चार्ज पार्टिकल्स दे बिकम्स न्यूट्रल एंड दीज पार्टिकल्स दे विल सेटल down at bottom
और यू कैन से कोएगुलेटेड, दे गेट कोएगुलेटेड। तो जो आपके चार्ज पार्टिकल थे वो कोएगुलेटेड हो गए, और पीछे जो बचा आपका व्हाट इज लेफ्ट, वाटर इज लेफ्ट। अंडरस्टैंड? सो जस्ट व्हाट वी हैव टू राइट, सिंपली अंडरस्टैंड द alum neutralizes, or you can say coagulates negatively charged particles in water which settle down at the bottom, leaving behind pure water. Understand now? So this students, we have done the 6th application. Now 7th application, that is blood clotting. Blood clotting. Blood clotting. Beta, this is a blood. You can say the blood contain negatively charged colloidal particles. Blood contains negatively charged colloidal particles. So what I have added, clotting के लिए हम क्या करते हैं, what we will add, फेरिक क्लोराइड, नॉर्मली फेरिक क्लोराइड को ऐड करते हैं, ठीक है ना, एंड इन सम केसेस वी नॉर्मली ऐड, यू कैन से पोटैश एलम और पोटैश एलम। सो पहले इसी को डिस्कस करते हैं। फेरिक क्लोराइड में वी नो दैट पॉजिटिव आयन क्या है बेटा आपका Fe+3 है। सो ये Fe+3 आयन क्या करेगा, इट अटैच्ड विद द नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ ब्लड, और ये जो आपके कोलाइडल पार्टिकल हैं ब्लड के, दे गेट प्रेसिपिटेटेड और कोएगुलेटेड, क्लियर, एंड द ब्लीडिंग स्टॉप्स। ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली क्या होगी बेटा, स्टॉप हो जाएगी। कुछ ऐसा ही काम पोटेशियम में भी होता है। पोटेशियम कंटेन Al+3 आयंस, अगर आप पोटेशियम को ऐड करोगे देन बेटा Fe3 पॉजिटिव आयन की जगह क्या आएगा, then Al3 positive ion coagulate करेगा and the bleeding stops. So what is the blood clotting? Just see out. In blood clotting, FeCl3 or potash alum coagulate the colloidal particles of blood which stops bleeding. So this we have done the 7th application. Now the last application of, you can say, coagulation is, that is tanning of leather. TANNING, tanning of leather. बेटा जो लेदर हम यूज करते हैं जस्ट लाइक वुडलैंड के शूज में है या बेल्ट्स में, वो लेदर काफ़ी हार्ड होता है, बट इनिशियली जो ये लेदर एनिमल्स की स्किन से, एनिमल हाइड से बनाते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। सो उस सॉफ्ट को हार्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज सी टैनिंग ऑफ लेदर। दिस यू कैन से एनिमल हाइड, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दीज एनिमल हाइड, इट कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स, क्लियर। सो हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, we have added tannin. Tannin contain negatively charged particles. ये आपको ध्यान रखना है। जो आपके एनिमल हाइड है उसमें पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल हैं, टैनिन में कैसे पार्टिकल्स हैं, टैनिन कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ व्हाट हैपन्स, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर म्यूचुअल कोएगुलेशन होगा। ये जो एनिमल हाइड के पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स हैं ये टैनिन के नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स को कोएगुलेट करेंगे दिस वे, और ये नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल पॉजिटिव को। सो व्हाट विल आई से, देयर अकर्स म्यूचुअल
कोएगुलेशन। म्यूचुअल कोएगुलेशन की वजह से क्या होगा, द प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड एंड द लेदर और यू कैन से एनिमल हाइड बिकम्स हार्ड। कुछ इस तरह से समझिए, ये आपकी एनिमल हाइड है जो इनिशियली क्या है, सॉफ्ट है। इसमें आपने क्या ऐड किया, आपने टेनिन ऐड किया, TANNIN, ये मैंने टेनिन ऐड किया। टेनिन ऐड करने की वजह से क्या हुआ, व्हाट हैपन्स, अब मैं लिख देता हूं, दिस इज एनिमल हाइड, म्यूचुअल कोएगुलेशन। म्यूचुअल कोएगुलेशन की वजह से क्या होगा बेटा, दीज प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। व्हाट फॉर्म्स, precipitate are formed and due to these precipitates it becomes hard। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। सो दिस इज द टैनिंग। तो यहाँ पे प्रोसेस जो होगा दैट इज रिमेंबर म्यूचुअल कोएगुलेशन। सो स्टूडेंट दिस वी हैव डन अ कंप्लीट टॉपिक, दैट इज अ बिग टॉपिक नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड। Coagulation, definition, mechanism, methods and application. So this is all about the coagulation, also said to be flocculation or precipitation. So that's all about the lecture.